Good morning, students. This is chapter number 9, Ray Optics, and this is lecture number 11, and it is microscope. Today's topic is microscope. Now we are starting the optical instrument portion of the ray optics. Means we will study now the instruments which is based on optics, right? So you know that the best optical instrument is human eye. Human eye is natural instrument which is based on optics. The photographic camera also work on the principle of human eye. Human eye की retina पे image बनती है. Same thing happens in the photographic camera. The image formed at the film, right? There is a convex lens. In human eye, there is also a convex lens. It means human eye is an optical instrument. But we are studying in the optical instrument microscope and telescope. Now, first of all, what is microscope? Microscope is an optical instrument used to see the small objects. कोई भी ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता हो उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप. तो हैव यू एवर सीन माइक्रोस्कोप? यस, डेफिनेटली you all have seen the microscope. Now the simplest form of microscope is simple microscope. In simple microscope there is only a convex lens, right? Now see, this is the principal axis of convex lens. An object placed between focal point and optical center. Now where the image will form? The image will form first ray parallel to principal axis passing through the focal point. Second ray travels through the optical center without any deviation, and if observers see these two rays, so he or she will observe that the image is forming in the same side. Means the virtual image will form in the same side, and since it is vertical, so the image will be erect. Now the image is larger than the object. It means it is a microscope, and since it is the simplest form of the microscope, so it is called simple microscope. So you have seen the magnifying glasses, है ना? वो ग्लास जिससे हम जो है मैग्नीफाई करके देखते हैं चीजों को. हाथ की लाइनें देखनी हो, या जो वॉच मेकर्स होते हैं वो वॉच को जब ठीक करते हैं तो अपनी आई पे एक लेंस लगाते हैं, तो उन्हें वो जो पार्ट होता है वॉच का वो बड़ा हो दिखता है और सीधा भी दिखता है. ठीक है ना? ऑल्दो इट इज वर्चुअल इमेज बट इट इज मैग्निफाइड इमेज. So it is the simplest form of the microscope. That's why it is called simple microscope, right? Now you cannot see the bacteria with the help of a convex lens, since the bacteria is microscopic, right? And it is a microscope, but we cannot see the bacteria with the help of simple microscope. हाथ की लाइनें तो देख सकते हैं, छोटे वर्ड्स अभी आप देख सकते हैं, छोटे लेटर्स भी आप देख सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज को नहीं देख सकते. नाउ वी आर गोइंग फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगा देंगे. अब हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि जब भी कोई दो लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं या थोड़ा सा एक दूसरे से अलग होते हैं तो उनकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. ठीक है ना? और पावर बढ़ जाती है. ठीक. लेकिन अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन इनकी m1 इंटू m2 हो जाती है, यानी प्रोडक्ट हो जाती है दो लेंसेज की. और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका मतलब मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब बड़ा हो जाता है. तो नाउ वी आर यूजिंग
more than one convex lens, and then we will get the compound microscope. यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने बायोलॉजी लैब में कई बार देखा होगा। मैं उसका एक स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे बनाऊं, रफ स्ट्रक्चर, तो इस तरीके का होता है जो आपने बायोलॉजी लैब में अक्सर देखा होगा। दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। अब इसमें माइक्रोस्कोप सिर्फ इतना है, हियर इज अ लेंस which is facing the eye and there is a lens which is facing the object. ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फेस करता है, और इसे कहते हैं आई लेंस, क्योंकि आई को फेस करता है। तो दिस माइक्रोस्कोप इज मेड ऑफ टू लेंसेज, टू कन्वेक्स लेंसेज, ठीक है ना। अब हम केवल इतने पोर्शन की बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिर्फ इतना है, बाकी का तो उसका स्ट्रक्चर है, सपोर्टिंग सिस्टम है, लेकिन माइक्रोस्कोप सिर्फ इन दो लेंसेज से मिलकर बना होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ सी, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस एंड इट इज फेसिंग द ऑब्जेक्ट। जो मैंने पिछला डायग्राम बनाया था उसमें ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस था, ये वाला लेंस इधर जो था, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आई की तरफ है दैट इज कॉल्ड आई लेंस। अब ये दोनों लेंसेज हमने यहाँ पे दिखाए, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज आई लेंस। अब आप डायग्राम में देख रहे हैं लेंसेज बड़े बड़े बने, इतने बड़े होते नहीं। आंख का साइज जितना होता है उतना आई लेंस का साइज होता है, जिसे हम आई पीस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटा सा है, लेकिन हमको आप फिजिक्स दिखानी है, रेज दिखानी है, इसलिए हमने इसको बड़ा बना दिया। और ऑब्जेक्टिव लेंस उससे भी छोटा होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होता है वो और भी छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो लेंसेज लेंगे, दोनों का सेम प्रिंसिपल एक्सेस होगा, इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, इसे कहेंगे आई लेंस। तो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें। इसका फोकल पॉइंट छोटा है, दोनों तरफ होगा एंड 2 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अगर बियॉन्ड 2f रखा तो इमेज छोटी बन जाएगी, और माइक्रोस्कोप का काम क्या है, इमेज को बड़ा करना। अगर मैं ऑब्जेक्ट को f और p के बीच में रखता हूँ तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी, और वर्चुअल बनेगी तो इसका कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखूं, f एंड 2f के बीच में। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, सेम थिंग इन द केस ऑफ आई लेंस। देखिए, इसका भी अपना फोकल पॉइंट होगा, इसका भी अपना 2f होगा, इधर फिर f होगा 2f होगा, है ना, दोनों साइड। तो हम देखें ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहाँ पे, f और 2f के बीच। अब इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। ये आपको पता है कि व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f एंड 2f, द इमेज फॉर्म्ड इन अदर साइड बियॉन्ड 2f, मैग्नीफाइड इमेज, बड़ी इमेज बनेगी। तो इसने क्या करा, यहाँ पे इमेज बना दी, ठीक है। अब ये जो इमेज बनाई है इसने, वो ये वाली, फिर क्या होगा, इससे रे जाएंगी, और कहां से होके जाएंगी, इस लेंस से। तो जो फाइनल इमेज बनेगी, देखिए वो कहां बनेगी, पहली रह गई, पहले हम इसी को दिखाते हैं। ये यहाँ पे इमेज बनाई इसने, कहां पे, a डैश b डैश पे, किसने, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। अब यहाँ से कुछ रेज गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकल पॉइंट से होके जा रही। दूसरी रेज आएगी ऑप्टिकल सेंटर से। अब जो ऑब्जर्वर है उसे क्या लगेगा, ये दोनों रेज पीछे से आ रही हैं कहीं से। तो फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट a डबल डैश b डबल डैश। तो फाइनल इमेज यहाँ पे बनी। ये इमेज बननी चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन। अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन क्या होती है, वो कम से कम डिस्टेंस जहां पे हमें कोई ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, तो उसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज कैपिटल D, ठीक। ये जो L देख रहे हैं आप, L इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, इसका मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है ना। पिछले केस में आपने देखा था एक ट्यूब थी, दोनों लेंसेज लगे हुए थे उसके, इस वाली की बात कर, ये जो मैंने बनाया, इसकी लेंथ को कहा जाता है L, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। दूसरी बात बेटा,
हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट के साइज यानी ए बी के साइज का ऑब्जेक्ट हमने यहां बना दिया। क्यों बनाया वो बाद में डिस्कस करेंगे। दैट इज ए ट्रिपल डैश ए डबल डैश, ये वाला जो, एंड ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश इज इक्वल टू ए बी। इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पे मान रहे हैं, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैपन, दिस इज द एंगल मेड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद इमेज। इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, तो उसके साथ की का एंगल है बीटा। ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां की जगह यहां पे रखूं तो ये एंगल बनाएगा एल्फा। इसकी हेल्प से अब देखिए इमेज बन गई हाईली मैग्नीफाइड, यानी इमेज मैग्नीफाई करके दे दिया इसने, तो इसी को कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द magnification. Before that, the objective is converging lens nearer to the object. ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्ट के नजदीक वाला है, ठीक है ना, और कन्वर्जिंग लेंस है। सेकेंड, द आई पीस, आई पीस मीन्स आई लेंस, द कन्वर्जिंग लेंस थ्रू विच द फाइनल इमेज इज सीन। नाउ बोथ आर शॉर्ट फोकल लेंथ, दोनों की कम फोकल लेंथ होती है, लेकिन आई लेंस की इसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। आप देख रहे हैं इसकी फोकल लेंथ यहां से लेके और यहां तक बड़ी है, लेकिन हैं दोनों की बहुत छोटी छोटी। जैसे मैंने कहा कि लेंसेज हमने बड़े बनाए हैं लेकिन होते ही छोटे छोटे। अब मुझे मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया जाता है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी आपके पास बीटा बाई एल्फा। देखिए इमेज ने एंगल कितना बनाया था, बीटा, ये बीटा आप देख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ने कितना बनाया था, एल्फा। तो मैग्निफिकेशन इज बीटा बाई एल्फा। नाउ दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा एंड एल्फा इज इक्वल टू 10 एल्फा। जैसा हम पहले भी बताते चले जा रहे हैं कि जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो tan थीटा को थीटा लिखा जा सकता है और साइन थीटा को भी आप थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 को यूज कर रहे हैं। अब देखिए बेटा 10 बीटा का क्या मतलब होगा, पिछले डायग्राम में चलते हैं। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को लूं तो tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डबल डैश पीई 20। सिमिलरली इसका आ जाएगा ए ट्रिपल डैश ए डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डबल डैश पीई 10 अल्फा की वैल्यू। तो हमने उसकी वैल्यूज रखी, वैल्यूज रखने के बाद उसे कैलकुलेट किया। तो आप देख रहे हैं बेटा जो बेस है वो डी के इक्वल है। अगेन वी आर गोइंग फॉर द, देखिए ये है कैपिटल डी, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। इमेज जहां पे बनी है ना वो कैपिटल डी पे बनी, तो ऑब्जेक्ट भी तो आपने वहीं पे रख दिया, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ इट विल बिकम a double dash b double dash divided by ab. Now what is a double dash b double dash? Size of image, और ab क्या है, size of object। बात वहीं की वहीं आ गई जहां से शुरू किया था हमने। तो अब हम इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं करा, a डैश b डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस। देखिए फिर से उसी डायग्राम में, पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट था ए बी और इमेज क्या थी, ए डैश बी डैश। दूसरे लेंस के लिए इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश और ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। तो हम इसे लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए था, ये आई लेंस के लिए था। नाउ वी कैन राइट दीज in the terms of this one, ME is equal to 1 divided by V minus FE। कहाँ से आता है, लेंस फॉर्मूला से। M इक्वल टू होता है V by U, तो V by U को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक। देन V की वैल्यू रखी माइनस डी, तो प्लस डी हो गई। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर देते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।